बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की तादाद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की तादाद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। सऊदी वज़ारत हज के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुल फतेह ने कहा कि नए हिजरी साल में उम्रा ज़ायरीन की तादाद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। दुनिया भर से जो लोग भी उम्रा करना चाहते हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। सदर जो बाइडन कोविड-19 से मुताल्लिक रिमार्क्स दे रहे हैं। बाइडन्स पैंडेमिक रिमार्क्स। सदर जो बाइडन ने कोविड-19 वबाई मर्ज से निपटने के लिए इंतजामिया की कोशिशों पर तबसरा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। You are highly unlikely to get COVID-19, and even if you do, the chances are you won't show any symptoms, and if you do, they'll most likely be very mild. Vaccinated people almost never are hospitalized with COVID-19. In fact, according to one recent study, 95% of overall COVID-19 hospitalizations are among those not fully vaccinated. And the data shows that virtually all the cases, hospitalizations and deaths due to COVID-19 are from the unvaccinated population. Last month, a study showed that over 99% of COVID-19 deaths have been among the unvaccinated people. 99%. That means if you're unvaccinated, your CDC will announce that and the details of exactly how it works. I told them I want them to take a look. I didn't tell them what they had to do. And my hope is it's going to be a new moratorium that in some way, and I'm not going to announce it now, let them announce it. साकी प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जैन साकी ने ब्रीफिंग दी। आइए आपको सुनाते हैं। For you at the top. Today, Secretary of Housing and Urban Development Marcia Fudge released a statement committing to do everything in HUD's power to stop evictions for families with HUD assistance or families who rent in housing that is insured by the Federal Housing Administration. This is part of delivering on what the President announced, or we announced in our statement just a couple of days ago. And while the emergency rental assistance funds are in the hands of state and local governments, one of the critical roles that the administration can continue to play is to act as a leading hub to convene states and cities and to share best practices, as we have done at 2 major eviction prevention summits. So this morning, Treasury published examples of simplified forms that are being used effectively by emergency rental assistance programs around the country. I have nothing I don't have anything on the schedule, but certainly that's a tradition, and the President is probably as obsessed with the Olympics as I am, if not more, so I expect there will be an invitation at some point. I think we have to wrap it up. Thank you, everyone. Have a great day. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने कोविड-19 से मुताल्लिक खुसूसी ऐलान किया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लेसिव ने मंगल को ऐलान किया कि वो शहर को जल्द ही इंडोर डाइनिंग, जिम और तफरीह के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के सबूत दरकार होंगे। लोगों को ये सबूत देने की ज़रूरत होगी कि इन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। ये हुक्म 16 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा और 13 सितंबर को मुकम्मल तौर पर नाफिज होगा। So today I announce a new approach which we're calling the Key to NYC Pass. The key to New York City. When you hear those words, I want you to imagine the notion that because someone's vaccinated, they can do all the amazing things that are available in this city. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key, you can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately, you will not be able to participate in many things. That's the point we're trying to get across. It's time for people to see vaccination as literally necessary to living a good and full and healthy life. The Key to NYC Pass will be a first-in-the-nation approach. It will require those conversations with the business community are crucial. We've had a lot of them already. What we're hearing from so many folks in the business community is they understand it's time, but they need government to lead. That's going to help them to do what they need to do. Not everyone's going to agree with this. I understand that. But for so many people, this is going to be the life-saving act that we're putting a mandate in place. It's going to guarantee a much higher level of vaccination in this city, and that is the key to protecting people and the key to our recovery.
That's why it's the key to NYC. The key to NYC Pass opens a lot of doors, and we need it. चीन में दोबारा कोरोना वायरस फैल गया। 1.5 साल कबल वबाई अमराज के आगाज के बाद से चीन में बदतरीन कोरोना वायरस फैल गया है, जिसमें बुध को मुल्क भर में मजीद दर्जनों केसेस, एक शहर को सील करने और इसके मुकामी रहनुमाओं को सजा दी गई। अमेरिका के 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक ईमेल्स में डिफेंस डिपार्टमेंट के सिविल डिवीज़न के साबिक कायम मकाम सरबराह जेफरी क्लार्क ने 2020 के इंतखाबात में DOJ रहनुमाओं को मुदाखलत करने की कोशिश की। ईमेल्स में लिखा गया कि महकमा इंसाफ रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर के लिए 2020 के इंतखाबात में मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों की तहकीकात कर रहा है। ये ख़त जॉर्जिया की रियासती मुकन्ना की हौसला अफजाई करता दिखाई देता है कि वो बेज़ाब्तियों से निपटने के लिए खसूसी इजलास तलब करे। इस मसवदे को उस वक्त के कायम मकाम अटार्नी जनरल जेफरी रोजन और उस वक्त के कायम मकाम डिप्टी अटार्नी जनरल रिचर्ड डोनेगेव ने मुस्तरद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक डोनेगेव ने क्लार्क को लिखा, जिन तहकीकात के बारे में जानता हूँ वो बद इंतज़ामी के शुबहात से मुतालिक हैं, जो इतने छोटे पैमाने पर हैं कि वो सिर्फ सदारती इंतखाबात के नताइज को मुतासर नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया तब्दीली की तरफ गामज़न है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान को हाइब्रिड वारफेयर का सामना है। हम खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ के लिए अफ़गानिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं। मसला अफ़गान की आदत का है कि उनके मुफादात भारत से मिले हुए हैं। वो बुध को वज़ारत ख़ारजा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 11वीं नेशनल मीडिया वर्कशॉप के शुरा से ख़ताब कर रहे थे। कबल अज़ीं 11वीं नेशनल मीडिया वर्कशॉप के शुरा ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा ऑफिस रज़ा बशर तारड़ और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ चौधरी भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर के हवाले से एक ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब। गुज़श्ता कई दहाइयों से भारत ने मकबूजा वादी में जुल्म व सितम की इंतहा कर रखी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ, असमतदरी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं। मकबूजा वादी में सियासी अमल को फ़ौजी ताकत से रोक दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की जा रही है। सलामती कौंसिल में 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम पर 3 बार मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत हो चुकी है। आलमी बरादरी को गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी मीडिया, सिविल सोसाइटीज़ और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करें। भारत गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में आलमी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श महर, रुकन सूबाई असम्बली अली गौहर महर और सफदर अब्बासी शरीक हुए। सिंध की मजमूई सूरत हाल, ख़ुसूसन अमन व अमान और कोरोना की सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। इसके अलावा सिंध में वफाक के जारी तरक्याती मनसूबों, ख़ासतौर पर सूबा सिंध के पहले बड़े ट्रांसपोर्ट मनसूबे ग्रीन लाइन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन लाइन की मुतय्यन शुदा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने और सिंध पैकेज के तहत मनसूबों पर भी तेज़ी से काम करने की हदायत जारी की हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कश्मीर के हवाले से खसूसी पैगाम। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम। 5 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फ़ैसला किया कि सारे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाए और ऐसा ही हुआ। ये वो दिन है जब वो 2 साल पहले कश्मीरियों पर 370 और 35A के तहत जुल्म ढाए गए। 5 अगस्त सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद की गई और खामोशी अख्तियार की गई और इस पूरे दिन में कश्मीरियों की जदोजहद पर बातचीत की गई। कल 5 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने फैसला किया है कि सारे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। ये वो दिन है जहां 2 साल पहले कश्मीरियों पर 370 और 35A के तहत जुल्म ढाए गए
और कल 9 बजे सुबह 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद होगी और खामोशी इख्तियार की जाएगी और कल का दिन उस जद्दोजहद आजादी को सलाम अकीदत पेश किया जाएगा जो कश्मीरी आवाम ने पिछले 70 साल से जारी रखी है। कल सारी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी। चीन में पाकिस्तान फिल्म वीक आज से शुरू हो गया। चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने और चीन फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम पहली दफ़ा चीन में पाकिस्तान फिल्म वीक आज से शुरू किया गया है। इस फिल्म वीक के दौरान पाकिस्तान की 5 फिल्में चीन में दिखाई जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन का बिजनेस फोरम कायम करने का फैसला। पाकिस्तान और चीन का निजी सरमायाकारों के लिए बिजनेस फोरम कायम करने का फैसला। एक मुलाकात के दौरान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी फरीना मजहर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम कायम करने के लिए बातचीत जारी है ताकि दोनों ममालिक के निजी शोबों के लिए बाहिमी राब्ते और मुश्तरका मनसूबों की राह हमवार करने के लिए मौके पैदा किए जा सकें। सेक्रेटरी फरीना मजहर ने सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि कारोबारी वीज़े के हसूल के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाएगा और सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी ताकि अपनी तजावीज़ को मज़ीद ताउन के लिए BOI के साथ शेयर कर सकें। CPEC के सम्राट जल्द पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, हालत मंसूर का बयान। CPEC के नए सरबराह ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। CPEC के असरात और सम्राट जल्द पाकिस्तानियों तक पहुँचेंगे। चीनी कंपनीज़ के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मेरा वसी तजर्बा है। आसम सलीम बाजवा को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने CPEC के लिए प्लेटफार्म मुहैया किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।